स्टार्ट करें क्या? सर 10:50 से होती थी ना लैब। तो आपको 8 मिनट और चाहिए मतलब। चलो कोई ना, 8 मिनट बात कर लेते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, फिर जितना जल्दी हो जाएगा एंड कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। करेंगे स्टार्ट? ओके सर। Okay guys. So guys, in last lab we have covered two line clipping line drawing algorithms, which is DDA and Bresnam line drawing algorithm. Now in today's lab we will see the circle drawing algorithm. So in our theory we have learned two different algorithms to draw a circle, which is nothing but your midpoint circle drawing algorithm and Bresnam circle drawing algorithm. Okay. So the property of circle is what? We have to identify only the pixel values of one octant, and based on 8-way symmetric property, we can easily predict the other octant pixel values. Okay. So that is the property or the advantage for us with respect to a circle. So guys, before starting, let me recall you that what is the procedure or the algorithm. Can you see this image? Can you see this JPG file? Yes or no? Yeah. So guys, here the concept, the step-by-step procedure of midpoint circle algorithm is what? First of all, we have to identify, we will ask to user that you have to enter the value of radius basically, because throughout the circle we have only a single radius. So normally in first octant we start our journey from the 0.r, which is nothing but the radius. Okay, so we'll ask user to insert r, then after then we will identify the initial decision parameter either using 5/4 minus r, or we can simply replace it with 1 minus r. Guys, if anyone asks you what is the decision parameter of midpoint circle drawing algorithm, so don't say 5/4 minus r, sorry, 1 minus r. Always say 5/4 minus r. The reason is this is the exact decision parameter. 1 by r is just for our convenience, कि अपन ने उसको फ्लोटिंग ना लेके वैसे ले लिया है, बट अगर कोई पूछता है तो यू हैव टू say 5/4 minus r. Okay, now guys, based on this decision parameter, if this value is less than 0, we will increase only x, y will remain same, and this is the next decision, next pixel value, which is pi of 2xi plus 3. If this value is greater than 0, then we have to increase x, y will decrease by -1, and new pixel value will be pi plus 2 of xi yi plus 5. So we have to repeat these steps until we will got all the pixel values. So that is what, guys, the algorithm that we will implement in today's lab with respect to midpoint circle algorithm. So please see it. Okay, you have to only remember it, that if it is less than 0, we will only increase x by 1. If it is greater than equals to 0, then we will increase x by 1 and decrease y by -1. Okay, y by 1. So that we have to remember. Is it clear, guys? So this algorithm is clear, जो अपन already discuss कर चुके हैं. Clear है ना आपको? Yes. Okay, guys. Now guys, let's open Turbo C again and see the code of it. Okay.
या ये पेज दिख रहा है ना आपको? Visible or not? Yes. Okay. If it is visible, then let's start. First of all, save this file. Save as midpoint circle. Overwrite. तो दूसरा नाम दे देते हैं, midpoint of circle. Yeah, guys. So as usual, first of all, we have to include all the header files that we require. So we'll start with stdio.h. Then we'll add conio to show our results. Getch we'll use. After then we required graphics.h, so we have to include it. Okay. Yeah, I think sufficient है, फिर देख लेंगे कुछ जरूरत होगी तो. Then we'll start our main. This is what your main. Now here you have to declare all the variables that you require. So first of all we have to ask the center value. Because normally the origin is 0,0, but sometime it is 10,10 or 8,8, something like that. So in that case, what we will do, we will simply add these values in our actual coordinates. So that's why these are nothing but your central coordinates. Okay. After then x comma y is nothing but from where you want to draw circle, like 0, r. So that is your x comma y. After then you will need also radius. After then graphics driver. So that is so GD and GM that we normally initialized. Now first of all you have to ask the radius value. So you have to simply write enter radius. You have to take input of it. So it is also integer, so we'll take %d over here, comma %r. तो यहाँ से अपने पास रेडियस आ गई. After then we'll initialize x and y. So our x is 0 because we'll start our journey from 0, r, and y is r. Okay, so whatever the value of r which is assigned into the y, so that is what from where we will draw our circle. Okay, so that is the thing. After then our decision parameter, which is, let us assume I forget to take variable of it, so let's take one more variable which is p as our decision parameter. So we know the initial decision parameter of our circle is 1 minus r. Actually it is 5/4 minus r, but we'll keep it as 1 minus r just for our convenience, for easy calculation. Now we have to declare our init graph. So in init graph we have to pass our graphics mode, comma ampersand graphics driver, comma that is C colon turbo C3, that is the path where the driver is stored. After then BGI. Okay. So that is the init graph, and after then you have to ask your central coordinates, what we can say. Okay, so we can simply write enter the center coordinates.
So once you enter center coordinates, you have to read it. That is nothing but xc and yc. Okay. So for that we also use %c sign, d. ओके तो अब ये यहाँ पे आप चाहे 0 0 डालोगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, 10 10 डालोगे तो ऑटोमेटिक वैल्यूज ऐड हो जाएगी. ठीक है. सो दैट इज व्हाट नाउ गाइज we can use for while, do while, whatever we want. So let us assume we are using do while loop this time. So in this we know, okay, let's start do. So in do if, सबसे पहले if condition. If means if your p value is less than 0, it means now we are, let me show you, now we are at this stage. Okay, अपन ने p निकाल लिया. Now after p we will see whether it is less than 0 or greater than 0. Based on it we will decide. Okay, so here you can see p less than 0. In that case what we will do, we will simply increase over x. आप नीचे देख सकते हो इस चीज को. So in that case what we will do, we will simply increase over x by 1. Y will remain same. So either you can write y equals to y or there is no need of it. Okay, you can simply change your next decision parameter, which is d equals to d plus, according to our formula. Sorry, we are taking p over here, so just take p equals to p plus 2 into x plus 3. Okay, so that is the formula. Then close it. Else part, else means when our p is greater than 0, greater than equals to 0. In that case what we will do, you can see in right hand side part, we will increase over x by 1, so it becomes x equals to x plus 1. We will decrease over y by 1, so it becomes y minus 1, and we will use p equals to, next pixel value becomes p equals to p plus, what is this, 2 of 2xi minus 2yi. Okay, so we can simply write it as 2 into bracket में x minus y plus 5 according to our formula. Okay, so this is what the part of if and else condition. Okay, now after then you have to close your do loop and give this while condition. कब तक? when your x is less than y, तब तक ये loop चलता रहेगा. Okay, so यहाँ पे आपका do while complete हुआ. After then you have to show your results using getch and close graph. That is the standard practice. Okay, after then you can show me. Now guys, one thing I think we forgot, that is where we put our pixels. Okay, so once you enter into the loop you have to put your pixels. Now guys, to put your pixel, that you have to take care. You have to, because you are using 8-way symmetric property of a circle, so for that you have to what I can say, you have to print 8 times put pixels with different combinations. For example guys, let me show you something for this. एक बार मुझे शो करने दो आपको. दैट इज मिड पॉइंट सर्किल ना. यस यस, कैन यू सी दिस फिगर? लेट मी जूम इट आउट. कैन यू सी दिस फिगर? Say yes or no. Is it visible? Yes, sir. Yeah. So here what we are doing guys, once we have one coordinate as x comma y, we can easily following the 8-way symmetric property to find out the other coordinates value also. तो अपने पास, so we have to print 8 times put pixels by changing the sign of x and y. That you have to take care. Okay, that you have to take care in case of circle coding, whether it is Bressnam or whether it is midpoint circle algorithm. तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे. So guys, according to this,
अपने पास जो सेंटर है वो 0,0 नहीं है, दैट इज XC, YC। तो हो सकता है यूजर 10,10 डाले। अगर 0,0 होता तो वी सिंपली राइट इट X, Y, कलर नेम। ओके, फिर दूसरी बार X, -Y कलर नेम, फिर तीसरी बार -X, Y कलर नेम। इस तरह से चलते। लेकिन इस बार अपन ने सेंटर यूजर से लिया है, तो उस केस में अपन जो अपना XC कोऑर्डिनेट्स है उसके अंदर X ऐड करेंगे। सेम ऐसे ही जो YC कोऑर्डिनेट्स है उसके अंदर अपना Y कोऑर्डिनेट्स ऐड करेंगे, और उसके बाद आपको जो भी कलर देना है वो आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल कोई भी एक कलर, फॉर एग्जांपल 3 भी दे सकते हो आप चाहो तो व्हाइट भी लिख सकते हो, मैक्रोज यूज कर सकते हो, तो जो भी आपका मन हो वो आप यूज कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट एक बार हुआ ये, ठीक है। इन द सेम वे यू हैव टू डू द सेम थिंग विथ 8 टाइम्स बाय चेंजिंग दिस साइन। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे बेसिकली। सो दिस टाइम इट इज XC प्लस X, YC -5, 3. Okay, now the next time, सर वो XC है ना? अच्छा ये वाला XC है सर। Yes, so it is put pixel, it is your again XC, this time take -X। सारे कॉम्बिनेशंस बनाने कहने का मतलब है ना, जैसे भी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग। YC प्लस Y 3 input pixel, again it is XC, दोनों को नेगेटिव ले लो, 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। सो इट इज X, YC -Y, 3। ये तो हो गए 4 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अपन ने क्या क्या किया, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब अपोजिट इसका, अपोजिट मतलब YX वाली टर्म लेके चलना है। सो दिस टाइम XC के अंदर ऐड करो Y, YC के अंदर ऐड करो X, 3। आप ये नीचे फिगर देख सकते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपने को 8 वे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगानी है। एंड द सेम वी हैव टू डू विथ ब्रेसनम आल्सो। ओके, so that is plus Y plus X हो गया। again the next one is that is your XC, इस बार प्लस Y कर लो, YC माइनस X कर लो, 3। ओके, तो ये हो गया प्लस माइनस। फिर ले लो माइनस प्लस वाला ले लो। सो अगेन पुट पिक्सल, that is XC माइनस ले लो इस बार -Y, YC प्लस X, 3। द लास्ट इज 7 हो गए ना, लास्ट वन इज दोनों नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव केस में आ जाएगा ये XC माइनस Y, YC माइनस Y, सॉरी X, 3। So I hope guys we have covered the 8-way symmetric property of it, and this is, अब देखो यहाँ पे अगर मान लो अगर यही आपका ओरिजिन 0 0 होता तो उस केस में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ओके, आपको सिंपली XY3 ये सब लिखना था, नेगेटिव XY3 वो सब, ठीक है। तो ये आपका कोड हो चुका है कंप्लीट। नाउ लेट्स सेव इट, नाउ कंपाइल इट। सर यस, डाउट था, आप पहले x को जैसे x और y इफ एल्स में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं और उसके बाद p में सेट कर रहे हैं। सर p के फॉर्मूला में तो x के और y के होता है ना, तो आप जब पहले से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो x के +1 यूज हो रही है वैल्यू, y के +1, तो मतलब बाद में चेंज कर सकते हैं ना हम, पहले p को सेट कर देते हैं उसके बाद x या y चेंज करते हैं। नहीं इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चलो ना। ये जो XI है ये वाला एक्चुअली XI +1 है क्या, ये वाला ये बोल रहे हो आप? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ ये xi ही है और आप वो xi +1 मतलब यूज कर रहे हैं वहाँ पे। चलो एक बार इसको कंपाइल करें।
ओके फिर देखते हैं अगर रिजल्ट्स क्या आते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सर F9 सही डेटा, कह रहे सर, वो एक्स पहले चेंज हो रहा है ना। हाँ मैं समझ गया आपकी बात, मतलब आपके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला, वो लाइन ऊपर आनी चाहिए ना। हाँ ये सर, पी पहले कैलकुलेट होना चाहिए। एक बार देखते हैं इसने इसने क्या करा है। F9, there is no error. Enter radius 8, enter the coordinates 300, 200. What happened? मतलब आप लोग ये बोल रहे हो कि इस लाइन को यहाँ से हटा के सर डिले नहीं डाल रखा इसलिए वो आउटपुट नहीं आ रहा है। ये भी डाल लो। हाँ डालें डिले। वाइल के पहले डाल दीजिए सर, वाइल वाला स्टेटमेंट के पहले। यहाँ पे डाल देंगे पुट पिक्सल हाँ के सर नीचे। इधर भी डाल सकते हैं। ले अपन ने 50 मिलीसेकंड का ले लेते हैं। और इसके रेस्पेक्टिव हेडर फाइल कौन सी थी? DOS.h थी ना, यही है ना हेडर फाइल डिले की। देखो ये चीज गाइज वैसे तो आप हेल्प में जाके भी पता कर सकते हो, जैसे ये सी के अंदर यही फायदा है। जैसे आप गए टॉपिक सर्च किया आपने, टॉपिक सर्च में आपने लिखा डिले, वो सब बता देगा। देखो इसके रेस्पेक्टिव हेडर फाइल DOS.h है। ओके, तो ये चीज भी आप कर सकते हो। नाउ सेव इट, कंट्रोल F9। ये कह रहा भाई, ओके। चलिए डालते हैं। अपन ने डाली मान लो 20 है, 300, 200। कुछ यहाँ पे भी इश्यू है क्या? C:, एक बार मेरा फोल्डर देखता हूँ मैं, यही है ना TURBOC3, TURBO-C3 BGI। एक बार मेरा फोल्डर चेक करता हूँ मैं, यही है ना C के अंदर TURBO-C3 में एक बार BGI बैकस्लैश डाल के देखते हैं। फॉरवर्ड की जगह। हाँ सर ट्राई कर लेते हैं। नहीं यही होना चाहिए यार, एक बार दोबारा कंपाइल कर दें। तो नहीं होना चाहिए, चलो ट्राई कर लेते हैं। ये बोल रहा बैकस्लैश आएगा। F2, कंट्रोल F9, Alt F9, radius is 20, coordinates are 300, 200. What happened? Graphics not initialized, use init graph। क्या इशू आ रहा है इसमें? सर वो पहले %GD है, उसके बाद %GM है, मतलब पिछले वाले कोड में आपके। ये हाँ सर। enter the coordinates 300, 200। सर्किल तो बन गया गाइस, सर्किल तो बन गया। अब आप लोग ये बोल रहे हो कि सर पहले x की वैल्यू बढ़ाएं फिर वो करें, ऐसा? हाँ सर, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से, बाकी वैसे भी बन रहा है तो शायद फर्क नहीं पड़ता होगा। हाँ मुझे भी ये लगता है। तो अपना जो ये जो कोड था,
इसमें अगर अपन इसको ऊपर भी कर दे तो शायद फर्क पड़ेगा नहीं, है ना? पहले इसको चेंज करके वो करे तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन करके देखेंगे एक बार। चलो ये आप लोग ट्राई करो गाइस, आप भी तो कुछ करो फिर। बट आपको एक कोड समझ में आ गया ना ऐसे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग? तो ये आप ट्राई करो एक बार, इस कोड को ऊपर लेके देखो। मैं भी इसकी .cpp फाइल आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ये कोड आपको समझ में आ गया ना गाइस? से यस और नो? यस सर। यस। सो इट इज वेरी सिंपल कोड एक्चुअली, ओके? जैसे अपने एल्गोरिथम थी उसी के अपन ने काम किया है। नाउ गाइस एक काम और करना है आपको। काम ये करना है आपको कि जो ब्रेसनम है सर्किल के लिए, ये वाली, इसका कोड अब आपको खुद को लिखना है। कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला चेंज है, बाकी तो सब सेम ही होने वाला है। नहीं, देखो इसका जो कोड है वो ये शीट मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है आपसे। इसका जो सुडो कोड है वो है ये वाला, कि आपको इस बार जो डिसीजन पैरामीटर हो जाएगा वो 3 - 2r हो जाएगा। आफ्टर देन वही r की वैल्यू पूछनी है। इफ वैल्यू इज लेस देन 0 दिस इज द केस, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस इज द केस। तो दोनों का सेम ही है पैटर्न, केवल आपका नेक्स्ट जो पिक्सल वैल्यू है वो चेंज हो रही है। बाकी वही 8 पुट पिक्सल्स आपको करने हैं, सेम काम वही पे है। ओनली यू हैव टू चेंज दिस इक्वेशंस, दैट यू हैव टू टेक केयर, ओके? सो दैट यू हैव टू डू एट योर एंड। और एक काम आपको ये करना है कि इन पिक्सल्स को ऊपर लेके देखो चेंज होता है क्या। ठीक है? इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? यस सर। So next 20 minutes is sufficient to do these two programs? Yes or no? Time is 11:10. So at 11:30, you all show your output of Bressnam circle drawing algorithm to me. Is it clear? Clear है ये? Okay guys, बाकी इसकी .cpp फाइल ये मैं आपको भेज देता हूँ. You can take the reference for it. I mean from this file, okay? So let me share that cpp file of it. क्या था ये? m.circle लगा था ना अपन ने, m.circle, yes. गाइस फाइल आ गई क्या? सीपीपी फाइल आ गई क्या? चैट बॉक्स चेक करो अपना। फाइल रिसीव हो गई क्या? यस सर। ओके गाइस, सो आपको दो काम करने हैं। एक तो इसमें वो थोड़ा सा कोडिंग चेंज करनी है, और एक ब्रेसनम सर्किल ड्राइंग की पीडीएफ ऑलरेडी आपके शेयर्ड है क्लास मटेरियल पे, वहां जाओ, वहां जाके उसका सुडो कोड देखो और उसके रेस्पेक्टिव उसके कोड को चेंज करके सर्किल ड्रॉ करो। ठीक है? सो अब 11:30 पे बात करते हैं अपन। ठीक है? तब तक के लिए आप लोग कोडिंग कीजिए। पहले किसी का हो जाए तो बता देना। ठीक है?
मैंने 5 ज्यादा एल्डर 3 लगवा के। बच्चों हो गया क्या? हो गई क्या? प्रोग्राम हो गया? किसका हो गया? रूबन। रूबन स्क्रीन शो करो आपकी। यस सर। 1 मिनट आपको राइट देने दो, पहले रुको, प्रेजेंटर बनाने दो। हाँ रूबन, अब आप प्रेजेंटर हो, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। सर स्क्रीन विजिबल है? नहीं, अभी ब्लैक है, अभी ब्लैक की स्क्रीन आ रही है सामने। सर अब? हाँ हाँ हाँ, अब विजिबल है। ये कौन सा वाला है? मिड पॉइंट? हाँ मिड पॉइंट नहीं सर, वो दोनों दिखा सकता हूँ वैसे। ब्रेसेनहैम पहले दिखा देता हूँ। अच्छा, ब्रेसेनहैम दिखाओ चलो। इसमें ये ध्यान रखना कि जब आप कोऑर्डिनेट्स डाल रहे हो तो लेफ्ट अपर कॉर्नर इज 0,0, इसलिए अपन इतने लंबे कोऑर्डिनेट्स डालते हैं 300 200, ताकि वो थोड़ा सेंटर में दिखे सर्किल, है ना। हाँ सर। रेडियस थोड़ी बड़ी लो, थोड़ी बड़ी लो, 100 के आसपास लो। कोऑर्डिनेट्स डालो 400 500। सर काफी नीचे हो गया, 300 ले लूँ? हाँ 300 ले लो, थोड़ा ऊपर ले लो। टू 300 ले लो, 300 200 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो वो फिर क्रॉस करेगा शायद। यस ठीक है, सर। तो ये कौन सा वाला है? ब्रेसनम वाला है? ब्रेसेनहैम वाला है सर। कोड दिखाओ एक बार मुझे। एक मिनट सर। तो यहाँ पे डी के वगैरह यूज होता है, तो डी कोड दिख नहीं रहा मुझे। हाँ अब दिख रहा है, रुको एक बार। हाँ सर, ये डी वेरिएबल यूज किया और इनिशियली 3 - 2r होता है, और फिर नीचे हो, ये पुट पिक्सेल्स कर लिए। फिर इसका फॉर्मूले में d इज टू d स्मॉलर देन 0 होने से 4x + 6 से इंक्रीमेंट, और इसके तो वो जो मिड पॉइंट वाला है उसमें देखा था कि ये डिसीजन पैरामीटर को ऊपर लाके कोई फर्क पड़ा था क्या? हाँ सर, उसमें भी चेंज करके किया, कोई फर्क नहीं, वैसे ही आया, वैसे ही फर्क नहीं सर्कल बन गया। है, सही है, तो फिर वो कहीं रख लो, कोई टेंशन नहीं। चलो ठीक है रूबन, गुड वर्क, गुड। एनी अदर स्टूडेंट? एनी अदर? चिराग, प्रेजेंटर बनाऊं आपको? यस सर। 1 मिनट रुको गाइज, ये दोनों प्रोग्राम फाइल में लिखने हैं, ठीक है? चिराग अग्रवाल है ना?
Yes, sir. Chirag, now you are presenter. You can share your screen. सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल है सर ये प्रेस वाला है। कोड ब्लॉक्स में वो graphics.h है क्या? यस सर। तो आपने अलग से डाली है इनबिल्ट थी? अलग से डालिए सर। ठीक हाँ, है, तो ये x बढ़ेगा y बढ़ेगा, डिले हो गया, ठीक है। डालो कुछ भी 80 के आसपास डाल दो। अच्छा कोऑर्डिनेट्स हैं हाँ पहले मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए। 80। ठीक है। और वो वाला मिड पॉइंट वाला मिड पॉइंट ये है। उसमें चेंज करा के कोड? अच्छा हाँ, चेंज करके हाँ दिखाओ सर रन वो करके दिखाओ। ऊपर, हाँ वो ऊपर कर दिया था मैंने। दिखाओ अब एक बार ये सेम ऊपर पहले कोऑर्डिनेट, कर सेम दिया। कोऑर्डिनेट्स लो, 300 200 जो भी लिया था अभी, और 80 रेडियस। ठीक है, ठीक है। तो कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुई चिराग? नो सर। बड़ी बड़े इजी प्रोग्राम्स है ना। चलो गाइस, आपके लिए एक थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग टास्क बनाता हूं। अब आपको पता है कि हाउ टू ड्रॉ सर्किल, आपको ये भी पता है हाउ टू ड्रॉ लाइन, either using Bresnam or DDA or using midpoint or Bresnam. Okay, so if you know this thing, please draw a wheel. व्हील कैसा बनाना है मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूं। यस, स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है स्क्रीन? यस सर। देखो आपको क्या करना है, एक ऐसा सर्किल बनाना है। इस सर्किल के अंदर जो भी कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आपको आइडेंटिफाई करके ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है, मतलब एक व्हील की शेप बनानी है, कहने का मतलब। ये चीज आपको ड्रॉ करनी है गाइस। नाउ दिस इज योर टारगेट फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मतलब अगले वेडनेसडे को आपको ये मुझे शो करना है सभी को पहले, उसके बाद ही अपन इलिप्स की कोडिंग पे मूव करेंगे। समझ में आ गए? तो आपको करना क्या है, बेसिकली ऐसे दो सर्किल्स बनाने हैं। इस तरह से आपको दो सर्किल्स बनाने हैं। अपने को पता है कि लाइन कैसे आएगी और सर्किल कैसे आएगा, इसका अपन पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आपको एक लाइन ऐसे बनानी है, एक लाइन ऐसे बनानी है। सो दैट डिजाइन यू हैव टू डू टिल नेक्स्ट वेडनेसडे। ठीक है, कंप्लीट इट। ओके, क्लियर? और अगर कोई ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो कोई गाड़ी वाड़ी भी बना सकता है, मतलब ठीक है ना। अब आप इसको जैसे भी, ये दो व्हील हो गए, अब आप चाहो तो साइकिल बना लो, चाहो तो कुछ भी बना लो, मतलब कार बना लो, कुछ भी, ठीक है ना। तो ये आपको बनाने हैं। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? यस और नो? ओके सर। या तो आपको इस तरह से कुछ दो व्हील बना के एटलीस्ट मुझे दिखाने हैं। बाकी आपको मर्जी हो तो आप ऊपर उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, गाड़ी वाड़ी बना सकते हो, वो सब चीजें हैंडल वैंडल बना के बढ़िया साइकिल बनाओ एक, ठीक है। तो वो आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो टोटल 4 प्रैक्टिकल्स अभी तक अपन ने कर लिए हैं। ये 4 प्रैक्टिकल्स आपको फाइल के अंदर भी नोट डाउन करने हैं विद देयर आउटपुट। ओके गाइस, और ये 5th वाला प्रैक्टिकल सर आपका व्हील वर्ड वाला है। फाइल में ना सर, आपसे बात हुई थी सर उस दिन। देखो आप वर्ड फाइल में कर लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर इन केस दूसरे सेक्शन ऑफलाइन मोड में आते हैं तो आपको भी आना पड़ेगा। फिर आप एक साथ रेडी हो ना लिखने के लिए। मैंने उस दिन ये बोला था आपको कि अगर आप लास्ट में सर एक साथ लिखने के लिए रेडी हो तो कर लो वर्ड फाइल, कोई अभी दिक्कत तो सर बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ऑफिशियल्स लोग, कि ऑफलाइन भी नहीं होगा शायद सेंड सेमेस्टर, तो नहीं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखते हैं करते सर रहो तब। बस। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि अगर इन केस वो ऑफलाइन होता है तो यू हैव टू प्रेजेंट योर फाइल। अब वो आपको एक नाइट में बनानी पड़ेगी, बना लोगे ना? वही मैं बोल रहा हूँ, बन जाएगी वैसे तो, 8-7 पेज तो होंगे और क्या है। नहीं हाँ सर ठीक है। बनाओ बनाओ, वर्ड में बनाओ, अभी तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना।
ओके चलो सर, ठीक तो है, तो उसका नेक्स्ट आपको प्रैक्टिकल में आपको व्हील बना के बताना है मुझे, और वो लिखना भी है प्रैक्टिकल फाइल में। 5 प्रैक्टिकल हो चुके हैं, कहने का मतलब ये 2 व्हील बनाने हैं और दोनों को ज्वाइंट करना है एक स्ट्रेट लाइन से। सर यस, इसका कोई सबमिशन वगैरह होगा क्या, मतलब जो भी? सबमिशन होगा ना, आप एक एक वर्ड के नीचे दूसरी वर्ड फाइल ऐड करते रहो, ऐड करते रहो, फिर लास्ट में सबसे मैं अच्छा, राइट, फाइनली लेंगे। हाँ ओके फाइनली मैं ले लूंगा जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे वो सब, है ना। ओके सर। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए ऑफ करें क्लास। यस सर। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लैब। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लैब।